Good evening, students. I am Tina Arora. I am giving you classes of mathematics of grade 8 of this books Exploring with Mathematics. Okay, yesterday we have studied about the polygons. We have done the exercise 3A of the chapter book Exploring with Mathematics. Now, today we will study about the quadrilaterals. Quadrilaterals. Quadrilaterals means a polygon having four sides is called quadrilateral. Four sides, four vertex, four angles is called quadrilateral. Any polygon, कोई भी polygon हुए, any shape, किसी भी shape का polygon हुए, just अगर four sides है, 1, 2, 3, 4, four side है means polygon केड़ा है quadrilateral है. किसी भी शेप का पॉलीगन हो सकता है, इसका किसी भी शेप का हो सकता है, फोर साइड है मींस क्या है वो क्वाड्रिलेटरल. किसी भी शेप का हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, इस तरह किसी भी शेप का बन सकता है क्वाड्रिलेटरल. जस्ट क्या होना चाहिए कि फोर साइड्स होन, फोर वर्टेक्स होन सॉरी एंड फोर एंगल्स बन रहे होन, दैट मीन्स वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि हर एक क्वाड्रिलेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ sum of adjacent angles will be 180 degree. means अगर मैं सपोज ट्रेपेजियम ले रही हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटर लिया मैं ए बी सी डी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? A and D ਐਡਜਸੈਂਟ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ, B and C ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ. ਐਂਗਲ A ਪਲਸ ਐਂਗਲ D ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ, ਐਂਡ ਐਂਗਲ B ਪਲਸ ਐਂਗਲ C ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ 180 degree. Is it clear everyone? Okay. Next we will study for the types of quadrilaters. Quadrilater family ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਆਪਾਂ family tree ਬਣਾ ਕੇ quadrilaters ਦੀਆਂ all types study ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? quadrilater ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ family ਹੈ, ਉਹਦਾ head ਹੈ quadrilater, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, 3 ਬੇਟੇ ਹੈ ਟਪਕ. ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਟਪਕ. 3 ਬੇਟੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ टी नेम तो है, एक का नेम P तो है, एक का नेम K तो है. क्या नेम है? फर्स्ट का नेम है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम. सेकंड है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एंड थर्ड वन इज काइट. क्वाड्रिलेटरल है, हेड ऑफ फैमिली, ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਹੈ ਟਪਕ. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटर एंड काइट. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਦੇ? ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈ, ट्रेपीजियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? one pair of parallel lines, one pair of parallel lines. Parallel lines means ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेपीजियम ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ट्रेपीजियम किस शेप च ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ट्रेपीजियम. ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ. ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? two pairs of parallel lines. सेकंड पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? two pairs of parallel lines. two pairs of parallel line मतलब
अभी दो पैरेलल लाइंस जा रही है। पैरेलल लाइंस मींस जो कि कदे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है किसी भी पॉइंट पे, और इधर भी दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं जो कदे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दो लाइंस इस तरह पैरेलल जा रही हैं जो कदे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कदे भी मीट नहीं कर रही है। जो लाइंस इधर जा रही है पैरेलल वो कदे भी मीट नहीं करेंगे। पैरेलल लाइंस की बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक है जो वो सीधा ही चलता रहता है, कदे भी आपस में मिलता नहीं है, कभी भी मिलता नहीं है। मीनस वो केड़ा होएगा पैरेलल लाइंस। दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे तो केड़ियां लाइंस होंगियां वो, केड़ी क्वाड्रिलेटर बनेगी वो पैरेललोग्राम। जीरो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जीरो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस वो क्या बनेगा काइट। काइट दे विच कोई भी पैरेललोग्राम कोई भी पेयर जिहड़ा वा पैरेलल लाइंस दा नहीं हुंदा, कोई भी लाइन जिहड़ियां वा पैरेलल नहीं है आपस दे विच, उस शेप नूं आपां बोलदे आ काइट। ये सी क्वाड्रिलेटर दे 3 बेटे। अगों जो है ट्रेपीजियम दे भी बेटे है, पैरेललोग्राम दे भी बेटे है। वो किस तरह से स्टडी करने हैं? ट्रेपीजियम दे 3 बेटे है अगों, केड़े केड़े है? आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, राइट एंगल ट्रेपीजियम, isosceles trapezium. Second is scalene trapezium. Third one is right trapezium. ये किस तरह तुसीं अगों याद करनी है? आइसोसेल ट्रायंगल्स ऑलरेडी तुसीं पढ़िया होया। आइसोसेल ट्रायंगल्स केड़े होंगियां? इन विच टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स इक्वल है मतलब ट्रेपीजियम भी आइसोसेल ट्रेपीजियम भी होएगा जिहदे विच टू साइड्स इक्वल होणगियां। केड़ियां इक्वल होणगियां? कोई भी जिहड़ा पेयर तुहाडा नॉन जिहड़ियां तुहाडे कोलों नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल अगर हो जाए तो तुहाडे कोलों क्या हो जाएगा? आइसोसेल ट्रेपीजियम बन जाएगा। नॉन पैरेलल साइड्स जो है इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा? आइसोसेल ट्रेपीजियम। स्केलर ट्रायंगल ऑलरेडी तुसी पढ़िया होया। स्केलर ट्रायंगल मींस क्या होता है? नो साइड विल बी इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होंदी। कोई भी साइड इक्वल नहीं होंदी। स्केलर ट्रेपीजियम दे विच भी सेम ही क्या होएगा? कोई भी साइड जिहड़ी है इक्वल नहीं होएगी। इस तरह कोई भी साइड आपस दे विच इक्वल नहीं होएगी। पैरेलल तो हो रही है बट कोई भी साइड आपस विच इक्वल नहीं होएगी। वो केड़ी होएगी? स्केलर ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम क्या होएगा? अगर वन पेयर जिहड़ा वा राइट एंगल्स दा बन रहा वा एडजेसेंट एंगल्स, वन एडजेसेंट एंगल्स दा पेयर जिहड़ा वा राइट एंगल बन रहा देन वो क्या बनेगा? राइट ट्रेपीजियम। इज इट क्लियर एवरीवन? केड़ियां-केड़ियां टाइप्स है ट्रेपीजियम दिया? आइसोसेल ट्रेपीजियम, स्केलर ट्रेपीजियम एंड राइट ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम केड़ा हुंदा? जिहदे विच टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हुंदियां। इहदे भी अगों 3 बेटे आ जांदे आ। वो किस तरह आंदे आ? एक आ रहा साडे कोलों रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इन्हां दोनों का फर्दर एक बेटा आ जाता वा स्केयर। इहदियां प्रॉपर्टीज आपां नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ांगे। फिलहाल एक्सरसाइज दे विच सिर्फ तुहाडे कोलों ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम तक है, आपां इत्थे तक स्टडी करांगे। काइट दा विच तुहानूं दस्सिया ही है कि काइट दे विच क्या हुंदा है कि आ जिहड़ियां तुहाडे कोलों एडजेसेंट साइड्स हुंदियां वो इक्वल हुंदियां। एडजेसेंट मतलब नाल नाल दियां साइड्स जिहड़ियां इक्वल हुंदियां। ऊपर वालियां दोनों साइड्स इक्वल होंगियां, नीचे वालियां भी दोनों साइड्स केड़ियां जिहड़ियां वो इक्वल होंगियां। इज इट क्लियर? काइट दे अगों फर्दर कोई बेटा नहीं है, इन्नी ही फैमिली है। इहदा तो बिना कोई भी होर क्वाड्रिलेटर तुहानूं सिलेबस विच नहीं आएगा। इवन कि और कोई क्वाड्रिलेटर नहीं बचा, सारे क्वाड्रिलेटर इन्हां विच ही आ जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? You can take this screenshot of this table.
Next, now we will study properties of trapezium. Now we will discuss the properties of trapezium, kite and parallelogram. Firstly, we will discuss the properties of trapezium. Trapezium ਦੀਆਂ properties ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? First property है bases are parallel. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ already ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ trapezium ਦੇ ਵਿੱਚ one pair ਜਿਹੜਾ ਵਾ parallel lines ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, other ਜਿਹੜਾ ਵਾ non parallel lines ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। First property clear ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ pair ਜਿਹੜਾ ਵਾ parallel lines ਦਾ ਹੋਏਗਾ। Second property है diagonal always intersect each other. Diagonal ਜਿਹੜੇ ਆ intersect ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। intersect मतलब ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ AC, ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ BD, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। Sum of adjacent interior angle is 180 degree. ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ कि एडजेसेंट एंगल है उनका सम जेड़ा 180 डिग्री ही आना है। तो क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी तो सब पासे यूज होनी है, इस दे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट की शेप सबने याद होगी कि कोई भी पेयर पैरेलल लाइन का नहीं होता। काइट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ काइट की तरह याद रख सकते हो। बस याद रखना है कि ऊपर वाली दोनों लाइन्स आपस में इक्वल है, नीचे वाली दोनों लाइन्स इक्वल है। ऊपर वाली इक्वल है मतलब ए बी जेड़ा BC दे इक्वल है, ए बी जेड़ा BC दे इक्वल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बन गई। DC जेड़ा सॉरी AD जेड़ा वा DC दे इक्वल है, AD जो है DC दे इक्वल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट है। सेकंड प्रॉपर्टी की कह रही है वो एंगल A जेड़ा C एंगल दे इक्वल है। इस एंगल की गल हो रही है एंगल ए जेड़ा एंगल सी दे इक्वल है। किस तरह कि जेड़ा दोनों दे विच वाला एंगल है इक्वल ते अनइक्वल है, लाइन दे विच वाला एंगल है वो दोनों आपस दे विच इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी है काइट दे विच याद रखनी तुसी। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल सो DO इज इक्वल टू OB। वो की कह रहे हैं अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर दवा लॉन्गर डायगोनल मेरा केड़ा होएगा AC। AC जेड़ा वा DB नु बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट दा मतलब हुंदा है आ लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर नु बाइसेक्ट कर रही है मतलब आ वाला पार्ट और दिस पार्ट बोथ आर इक्वल। दोनों पार्ट्स क्या है इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो फिर मेरे को रिजल्ट क्या बन जाएगा DO इज इक्वल टू OB। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल भी जो लॉन्गर डायगोनल है वो एंगल्स नो भी बाइसेक्ट करता है। एंगल्स नो किस तरह बाइसेक्ट करेगा ACD का दे इक्वल होएगा ACB दे एंड BAC का दे इक्वल होएगा CAB दे। मींस आ वाला शॉर्ट पार्ट किस एंगल दे इक्वल होएगा इस पार्ट दे इक्वल होएगा और ये वाला पार्ट किस पार्ट दे इक्वल होएगा इस पार्ट दे इक्वल होएगा। एंगल लिखने ऑलरेडी तुहानू आ जांदे आ। सेंटर दे विच जेड़ा एंगल है ओ वाला रखना है, साइड से तुसीं इहदे नेम रखने हैं। फिफ्थ पॉइंट है AC जो है परपेंडिकुलर होएगा DB दे ऊपर। परपेंडिकुलर होएगा मींस आ केड़ा एंगल बन रहा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं कि टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे। फर्स्ट पॉइंट है AB जो है DC दे पैरेलल होएगी। दिस लाइन इज इक्वल टू DC, जो पैरेलल होंगे वो इक्वल ही होंगे। BC इज इक्वल टू AD। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, BC इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू DC। सेकंड पॉइंट इज सेम एज दिस पॉइंट सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। मींस अगर दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स है दोनों का प्लस कितना होएगा 180 डिग्री दे। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू
सॉरी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एडजेसेंट एंगल्स ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 180 डिग्री ਦਾ ਹੋਏਗਾ। एनी क्वाड्रिलेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। थर्ड पॉइंट है जो कि एक्स्ट्रा है पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ, वो क्या है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स मतलब ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ एडजेसेंट नहीं है, ਨਾਲ नहीं बैठे, ਜਿਹੜੇ A ਤੇ C ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ नहीं बैठे, दूर है, अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स ਜਿਹੜੇ ਆ इक्वल होंगे। A and C are equal, D and B are equal, B and D are equal, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, जो डायगोनल है, एक डायगोनल एक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे ईच अदर मींस आ जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस वन। दोनों जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी विल बी इक्वल टू ओ बी। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, these are the properties. In short, I am repeating the again. Today we have discussed the quadrilateral family. Quadrilateral head है, उसके 3 बेटे हैं, टपक, trapezium, parallelogram and kite. Trapezium that have only one pair of parallel lines, parallelogram that have 2 pair of parallel lines, kite that have no pair of parallel lines. Trapezium ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 pair of parallel lines है और ਜਿਹੜੇ एंगल्स है एडजेसेंट एंगल्स है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮ 180 डिग्री है। काइट के अंडर प्रॉपर्टीज कहती हैं कि जो ऊपर वाली साइड है वो दोनों आपस में इक्वल है, नीचे वाली साइड है जो दोनों आपस में इक्वल है। और डायगोनल जेड़े आ लॉन्गर डायगोनल जेड़ा है वो शॉर्टर डायगोनल नु बाइसेक्ट कर रहा है, मींस इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली एंगल्स नु भी वो बाइसेक्ट कर रहा है। सी वाले 2 एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल्स इक्वल है, ए वाले भी 2 एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल इक्वल है। AC जो है वो DB ਦੇ ਉੱਪਰ परपेंडिकुलर बना रही है। पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ पैरेलल ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹਨ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮ 180 ਹੈ ਹੀ ਹੈ। पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋजिट एंगल्स है वो क्या है इक्वल है। डायगोनल क्या ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ मींस OA ਜਿਹੜਾ OC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, OD ਜੋ ਹੈ OB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, these are the all about the properties of quadrilaters. Tomorrow we will do the exercise 3B. Okay, have a nice day. Thank you.